السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز، اور اس ناول کو لکھا ہے عائشہ ملک نے۔ تو چلے جی آگے دیکھتے ہیں کہ اس ناول میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، ناول پسند آتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں دلاج کے روم میں وہ اس وقت سبھی موجود تھے۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نگاہیں سب سے پہلے اس دشمن جان پر ہی اٹھی تھی، جس کی خود کی نگاہیں دروازہ کھلنے پر ہی اس کی سمت ہی اٹھی تھی۔ تو سامنے رافع شاہ کو دیکھتی وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کب سے وہ صرف اس شخص کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اب جو شخص آیا تھا تو نگاہیں ہی جھک گئی تھی۔ رافع بلاشاہ نے گہری نظروں سے اس کے زردی مائل چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو اس کو دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ روم میں داخل ہوا تھا اور شامیر شاہ کے ساتھ صوفے پر موجود خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شامیر شاہ جو ابھی مہروش کا فون سن کر آ بیٹھا تھا، رافع شاہ کو تیکھی نظروں سے دیکھتے اس نے گلا کھنگارا تھا۔ فرحال اور فاطمہ، مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، شامیر شاہ بولا تھا تو سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ فرحال جو دلاج فاطمہ کے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی، شامر شاہ کی بات پر فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دلاج فاطمہ نے نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی ادا، بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ اس میں پرمیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرحال مسکرا کر بولی تھی۔ شامر شاہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ دونوں بہنیں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتی تھی، اور شامر شاہ انہیں اپنی بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ بیٹا، آپ دونوں میری ذمہ داری ہیں، اور میں اب اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اب گڑیا کی شادی کر دینی چاہیے۔ فرحال کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے بولتے وہاں موجود ہر ایک کو حیرانگی میں مبتلا کر گیا تھا۔ دلاج فاطمہ کے ساتھ ساتھ رافع بلا شاہ نے بھی جھٹکے سے سر اٹھا کر شامر شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو مکمل طور پر فرحال کی جانب متوجہ تھا، جو شامر شاہ کے کہنے پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رافع بلا شاہ کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جی ادا، جیسا آپ کو بہتر لگے، ہماری زندگی کا ہر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، اور اب اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو لڑکا بھی دیکھا ہوگا۔ فرحال نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور شامر شاہ گہرا مسکرایا تھا، اور ہاں میں سر ہلایا۔ رافع کا رواں رواں اس کی بات سننے کے لیے اس کی جانب متوجہ تھا، جبکہ دلاج فاطمہ بھی ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ شامر شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ شکریہ بچہ، اور لڑکا تو میں نے دیکھا ہوا ہے، میرا جاننے والا ہے، لیکن پہلے ہم گڑیا سے تو پوچھ لیں وہ اپنے ادا کے فیصلے تو مطمئن ہے یا نہیں۔ دلاج کے فق پڑتے چہرے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے وہ نرمی سے بولا تھا، اور رافع بلا شاہ کو لگا اس کا دل مٹھی میں آ گیا ہے کہ گردن اور دماغ کی رگیں ابھر کر باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں آکسیجن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ لب آپس میں سختی سے پیوست کیے تھے۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے اس نے ہونٹوں پر رکھتے شامر شاہ سے نگاہیں ہٹائے دلاج کی جانب دیکھتے اس کا جواب سننے کے لیے بے قرار ہوا تھا، جو اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گڑیا، آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرا فیصلے سے ذرا سی بھی پرابلم ہوئی تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کے جھکے سر کی جانب دیکھتے شامر شاہ نرمی سے بولا تھا کہ دلاج نے جلدی سے سر اٹھا کر شامر شاہ کی جانب دیکھا۔ دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ ماتھے پر شبنم کے چھوٹے چھوٹے سے قطرے در آئے تھے کہ اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھ اس نے آپس میں سختی سے پکڑے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ادا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اپنے اندر کے ہی آنسو بہاتے دل میں اٹھتے درد کو اگنور کیے وہ بولتی اپنا سر جھکا گئی تھی کہ رافع بلا شاہ کی آنکھیں خون جھلکانے کی حد تک سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ ہاتھ اور ماتھے کی وینز ابھر کر باہر در آئی تھی۔ پورے بدن میں غصے کی رمق دوڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، بنا ادھر ادھر دیکھے وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا روم کے دروازے کو زور سے بند کر گیا تھا کہ دلاج فاطمہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ شامر شاہ باقی سب نے بھی اسی کے اس قدر شدید ریئیکشن کو دیکھا تھا۔ شامر شاہ نے لب سختی سے پیوست کیے تھے۔ عریض شاہ کے ساتھ محراب نے بھی رافع کے ایکٹ پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ بہت شکریہ بچے، یہاں سے جاتے ہی میں داجی سے بات کروں گا۔ آگے ہوتے دلاج کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ کو اب اپنے آنسو کنٹرول کرنا مشکل لگ رہے تھے کہ وہ لب مروڑتی رہ گئی۔ او مائی گاڈ! محراب شاہ دھنک کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لیے ہاسپٹل سے نکلتا، ابھی اپنی گاڑی کی جانب جاتا، وہاں بیٹھتا جب اپنے نام کی کسی صنف نازک کے منہ سے پکار سنتا۔ محراب شاہ کے قدم تھمے تھے۔ وہیں پر دھنک نے مڑتے ہوئے پیچھے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وائٹ کلر کی پینٹ کے اوپر بلیک کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، اس کے اوپر وائٹ کلر کا کوٹ پہنے، اسٹریٹ بالوں کو کھلا چھوڑے کوئی 19-20 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی دکھائی دی تھی
کہ دھنک کا چہرہ اپنے سامنے محراب شاہ سے مخاطب کسی لڑکیوں کو دیکھتا پل بھر میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اپنا ہاتھ نہ محسوس انداز میں اس نے محراب شاہ کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، جسے محراب شاہ محسوس نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی زاریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی تھی، وہ امریکہ میں اس کی فیلوز رہی تھی شاید۔ زاریہ شاہ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے گولڈن رنگ کی آنکھوں میں چمک لیے محراب شاہ کی جانب بڑھی تھی، جو ابھی تک اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ سکتہ اس کا تب ٹوٹا جب زاریہ شاہ نے آگے ہوتے اسے سائڈ ہگ کیا تھا۔ واٹ اے پریزنٹ سرپرائز، تم یہاں مجھے اس طرح سے ملو گے، آئی کانٹ بلیو۔ خوشگوار حیرت بھری آواز ابھری تھی۔ محراب شاہ جو ابھی حیرت تک حیران تھا، لب بھینچتے ہوئے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لائے اسے پیچھے ہٹا تھا۔ ماتھے پر انگنت شکنیں نمودار ہوئی تھی، جبکہ دھنک کے چہرے کا رنگ فخر سے اڑا تھا۔ دل کے اندر چھناک سے کچھ ٹوٹا تھا، دل کے اندر کہیں اندر کچھ ہلچل سی ہوئی تھی۔ کیسے ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ کر تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور ہوٹ ہو گئے ہو۔ اس کے خوبصورت وجیہت چہرے پر نگاہیں ٹکائے وہ بے تکلفی کے ساتھ بولی تھی۔ دھنک کا چہرہ سرخ پڑا تھا، اپنا ایک قدم اس نے محراب شاہ سے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ او آئی ایم سوری، ہاؤ از شی محراب؟ نگاہیں سوری لکھا ہوا ہے ہو از شی محراب۔ نگاہیں اس سے ایک قدم پیچھے کھڑی اس نازک سی انتہائی خوبصورت لڑکی پر پڑی، آنکھوں میں الجھن لیے وہ محراب شاہ سے بولی تھی کہ محراب ایک دم سے چونکا تھا۔ گردن گھمائے دھنک کے بے یقین اور سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ دیکھا جو اس نے کب کا چھڑوا کر اس سے پیچھے بھی ہٹ گئی تھی۔ محراب شاہ نے فوراً سے اسے بازو سے تھامے اپنے اظہار میں لیتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا کہ جہاں محراب کی اس حرکت پر دھنک کا چہرہ سرخ پڑا تھا، وہیں پر زاریہ شاہ کے چہرے کا زاویہ بدلا تھا۔ مسکراہٹ فوراً سے سمٹی تھی۔ اوہ سوری، میں تمہاری اپنی وائف سے میٹ اپ بھی نہیں کروا پایا۔ ایکچولی تمہیں یہاں دیکھ کر میں تھوڑا حیران ہوا ہوں۔ خیر ان سے ملو، یہ میری بیوٹیفل اور کیوٹ سی وائف ہے دھنک محراب شاہ، اور دھنک یہ امریکہ میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، زاریہ شاہ ہے۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے اپنے ڈمپل شو کرتا وہ زاریہ شاہ کو بولتا دھنک سے مخاطب ہوا تھا، اور زاریہ شاہ نے دیکھا تھا دھنک سے مخاطب ہونے پر اس نے لہجے میں عزت اور مان چھلک رہا تھا۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو مسز دھنک شاہ، بر وقت مسکراتے وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تھی۔ دھنک نے بمشکل مسکراتے اس کے ساتھ سلام لی تھی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے محراب سے مخاطب ہوئی۔ ریئلی سوری، میں ضرور پوچھتا اگر مجھے جلدی نہ ہوتی۔ ایکچولی میری وائف نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور باہر کا کھانا اسے پسند نہیں، اس لیے اب ہم گھر جا رہے ہیں، تو سوری، پھر کبھی ملیں گے۔ بلکہ تم آنا ہمارے گھر، اب ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ پتہ نہیں وہ اسے کیا ظاہر کروانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں سے زاریہ شاہ کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ وہیں پر دھنک نے منہ کھولے محراب شاہ کو دیکھا تھا، جو کبھی اس لہجے میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ آنکھوں کو چھوٹی کی اس نے محراب شاہ کو گھورا تھا، جو اب دھنک کا ہاتھ پکڑے گاڑی کا دروازہ اوپن کرتا، اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، خود دوسری جانب ہوتے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور اپنی گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ چہرے پیچھے زاریہ شاہ نے سرخ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے دور تک ان کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ بہت شکریہ بچہ، اور لڑکا تو میں نے دیکھا ہوا ہے، میرا جاننے والا ہے، لیکن پہلے ہم گڑیا سے تو پوچھ لیں وہ اپنے ادا کے فیصلے سے مطمئن ہے یا نہیں۔ شامیشہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح دماغ میں بج رہے تھے۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، ادا جیسا آپ کو بہتر لگے۔ دلاج فاطمہ کے الفاظ یاد آئے تو رافع بلال شاہ کو لگا اس کا دل اور دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر گاڑی ہی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کرتے وہ فارم ہاؤس کے راستے ڈال گیا تھا۔ نو نو نو، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے لالا کو ہاں کر سکتی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو کیسے اس نے یہ سب کیا؟ اس نے یہ سب کہا، اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے اس نے اسٹیئرنگ پر مارتے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ دماغ کی رگیں ایسی تھی جیسی ابھی باہر نکل آئیں گی۔ نو دلاج بی بی، نو، تمہیں میں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اور یہ جو تم نے آج میرے دل پر وار کیا ہے نا، اس غلطی کی معافی بھی کبھی نہیں دوں گا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روکتے وہ گاڑی سے نکلتا، تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جہاں پر اس کے گارڈ اسد کو پکڑ کر بیسمنٹ میں باندھ چکے تھے، جبکہ اس شخص کو انہوں نے رافع شاہ کے کہنے پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا تھا تو سامنے ہی اسد کے چہرے پر بلیک کلر کا کپڑا چڑھائے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اسے نیچے فرش پر پھینکا ہوا تھا کہ اسے وہاں دیکھتا رافع بلال شاہ کا دماغ کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کون ہے؟ نکالو مجھے، کس نے مجھے پکڑا ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ اسد غصے سے بولتے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن دونوں پاؤں کو بھی
रस्सियों से बांधे हुए की होने की वजह से उसी की ये कोशिश नाकाम रह गई थी। राफे चुपचाप चलता हुआ उसके सामने दोनों जानों बैठा था। वो चेहरे पर स्पॉट तासुरात सजाया। उसने झटके से उसके चेहरे से ब्लैक रंग का कपड़ा हटाया था और हटने की देर थी कि अपने सामने राफे बलाशाह को बैठे देखकर असद अपनी जगह पर साकित होकर रह गया था। आंखें आखिरी हद तक फैली थी। तुम अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता जब राफे बलाशाह का हाथ का मुक्का उसके चेहरे पर लगा था और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा था। क्या सोचकर ये सब किया कि तुम बच जाओगे, राफे बलाशाह से बच जाओगे? वो बोला नहीं धाड़ा था। असद को लगा उसके कान फट जाएंगे। राफे के अंदाज से उसे वहशत टपकती हुई महसूस हुई थी। तुमने भी तो सब यूनिवर्सिटी के सामने उस लड़की के लिए मुझे मारा था। कैसे भूल सकते हो तुम? हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक उस लड़की की वजह से तुम मेरे दुश्मन बन गए हो। तो कैसे ना उसे रास्ते से हटाता। उसकी सुनवई आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो बिना डरे बोला था। राफे बलाशाह ने हाथ की मुट्ठी बनाते लब भींचे थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गई। बकवास बंद कर अपनी कमीने इंसान। तुम जैसे दोस्त पर मैं थूकना पसंद करूंगा। जिसे औरतों की इज्जत करना नहीं आता। और तुम कहते हो कि तुम राफे बलाशाह के दोस्त हो। अपने हाथ के कई मुक्के उसके चेहरे पर मारते हुए धारते हुए बोला था। कैसे उसके मुंह से खून का फवारा छूटा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है कि तुम राफे बलाशाह के हाथ लग गए हो। अपना सारा गुस्सा वो उस पर निकालते उससे आदमू कर कर वो सॉरी लिखा हुआ अपना सारा गुस्सा वो उस पर निकालते उसको आदमुआ कर गया था जब रूम का दरवाज़ा झटके से खोला था और शामिर शाह अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन सामने का मंजर देखते हुए जल्दी से राफे की जाने बढ़ते असद को उससे छुड़वाता उसे धक्का देते पीछे कर गया था। लाला छोड़ें आप मुझे। इस शख्स की हिम्मत कैसे ही मोहतरमा के साथ ये सब करने की। मैं उसे जिंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। अपने आप को शामिर शाह के हिसार से छुड़वाते हुए दबे दबे लहजे में मुराते हुए बोला था। राफे शाह अपने आप को काबू में रखो, वरना मैं रखने पर आ गया तो चलने के काबिल नहीं रहोगे। वॉर्न करती निगाहों से तनबीह करते संजीदगी से कहा था कि राफे बलाशाह हाथ की मुट्ठियां भींच कर रह गया था। शामिर शाह से अपना आप छुड़वाता हुआ गहरे गहरे सांस भरता रुख मोड़े अपने बालों में हाथ फेरने लगा था कि शामिर शाह उसे संजीदगी से देखता असद को वहीं छोड़े राफे का हाथ थामे उसे वहां से लेकर बाहर की जाने बढ़ा था। लॉन्च में लाते उसका हाथ एक झटके से छोड़ते उसने एक रख कर थप्पड़ राफे बलाशाह के चेहरे पर मारा था कि राफे की आंखें सदमे से फैली थी। लब सख्ती से भींचे उसने शामिर की जानिब देखा, जो खूनख्वार नजरों से राफे को देख रहा था। तुम्हारा लाला मर गया था जो तुम ये सब अकेले करते फिर रहे हो। दबे दबे लहजे में घुराते हुए वो बोला था और राफे का दिल दहल गया था। अल्लाह ना करे लाला आपको कुछ हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और उस कमीने इंसान ने मेरी मोहतरमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर आप नहीं आते तो मैं सच में उसे जिंदा नहीं छोड़ता। शामिर शाह की बात पर तड़पते हुए वो बोलते, जबकि मोहतरमा की बात पर आंखों में सब कुछ जला देने की चिंगारी लिए वो बोला था। गुड़िया की हिफाजत करने के लिए मैं हूँ, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। दो टोक अंदाज में कहते वो बोला था। लेकिन लाला आपने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते वो बोला था। मैंने ही तुम्हें कहा था गुड़िया की हिफाजत करने की। अब मैं ही तुम्हें कहता हूँ उसकी हिफाजत के लिए उसका अदा काफ़ी है, और अदा के बाद उसका शोर होगा तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में देखते शामिर शाह संजीदगी से बोलता रफे बलाशाह का दिमाग घुमा गया था। लाला आपको ऐसा क्यों लगता है कि राफे बलाशाह के होने के बावजूद मोहतरमा की शादी किसी और से होगी? मैं हाथ पर हाथ धरे सब कुछ देखता रहूंगा। दबे दबे लहजे में दांतों को पीसते हुए वो शामिर शाह की आंखों में अपनी सुरमई आंखें डाले बोला था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आईब्रो उचकाते हुए संजीदगी से बोला था। मतलब सीधा और साफ है लाला। मैं मोहतरमा से मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। सीधे और साफ अल्फाज में कहते हुए शामिर शाह को चौंका गया था। आईब्रो रेज करते उसने राफे की जानिब देखा था। मैं ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करता, लेकिन तुमने बताने में देर कर दी है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। संजीदगी से कहते हुए राफे बलाशाह का ज़ब्त आजमा गया था। तो फिर आप भी सुन लीजिए लाला, अगर आपने मोहतरमा की शादी मुझसे ना करवाई तो याद रखिएगा, खून में आपका ही हूँ। आपकी तरह ही आपकी गुड़िया को किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है। अपनी गुड़िया की प्यार मोहब्बत के साथ मुझसे शादी करवाएं, या आपकी गुड़िया को किडनैप करके ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करूं। क्या कमाले बेनियाजी थी। अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वो इस तहज़ाई अंदाज में बोलते शामिर शाह को होंठ भींचने पर मजबूर कर गया था। सख्ती से आपस में पेवस्त किया, हाथों की मुट्ठियां भींचे उसने राफे की जानिब देखा, जो होंठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए अपने लाला को देख रहा था। तो यकड़ पहले कहाँ थी? अब मैंने उसके लिए रिश्ता देख लिया है तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत याद आ गई। पहले क्या सोई हुई थी तुम्हारी ये मोहब्बत? एक एक लफ्ज चबाकर कहते हुए राफे की जानिब देखते गुस्से से बोला था कि राफे शाह ने अपने बालों में हाथ फेरा था।
अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से जाते ही मैं दादी से बात करूंगा, बाकी जो दादी को बेहतर लगे, क्योंकि इस बार सब दादी के फैसले से होगा। इस बार मैं दादी को नाराज़ नहीं कर सकता। ये कहते वो बाहर की जानिब बढ़ा था। तो फिर मैं देखता हूँ कैसे आप उसकी शादी किसी और से करवाते हैं। राफे शाह इस वजूद को आग ही लगा देगा। वो भी गुस्से से कहते लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया था, जबकि पीछे शामिर शाह उसकी पुश्त को ही घूरता रह गया था। वो मेरे साथ अमेरिका पढ़ती थी, मतलब मेरी यूनी फेलो थी। गाड़ी में छाई हुई बेईमानी की खामोशी को मेहराब शाह ने गला खंगारते तोड़ते गंभीरता आवाज में कहा था कि धनक जो अपनी निगाहें गाड़ी के शीशे नजर आते बाहर चलते हुए मनाजिर पर किए हुए खामोश बैठी थी। कि धनक जो अपनी निगाहें गाड़ी के शीशे में नजर आते बाहर चलते हुए मनाजिर पर किए हुए खामोश बैठी थी। मेहराब शाह की बात सुनते उसने खामोश नजरों से उसकी जानिब देखा था। हमने तुमसे नहीं पूछा कि वह कौन थी, संजीदगी से कहते वो फिर से अपना रुख बाहर की जानिब कर गई थी। मेहराब शाह ने सामने से नजर हटाते अपनी बीवी की जानिब देखा, जो उससे रुख मोड़े सारी तवज्जो बाहर मरकूज किए बैठी थी। और मेहराब शाह को हद दर्जा गाड़ी के शीशे से नजर आते बाहर के चलते हुए मज़ाहिर से रकाबत महसूस हुई थी कि उसकी बीवी उसे देखने की बजाय इन चीज़ों को देख रही थी। आपने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप कोई भी फजूल का खदशा ना लाएं अपने दिमाग में। उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेते हुए सामने देखते हुए संजीदगी से बोला था कि धनक का हाथ उसके हाथ में लड़ता था। हमें कोई शौक नहीं है फजूल की चीज़ों के बारे में सोचने का, और छोड़े हमारा हाथ। उससे अपना हाथ छुड़वाने की मज़ाहमत करती वो संजीदगी से बोली। जब मेहराब शाह ने सुनसान सड़क को देखते गाड़ी एक साइड पर लगाते झटके से गाड़ी की ब्रेक पर पाँव रखते उसे रोका था। ये धनक जो पूरी तरह उसकी जानिब मुड़े अपनी कलाई छुड़वा रही थी, झटके से गाड़ी रुकने पर वो अनबैलेंस हुई थी कि सर अभी उसका आगे डैशबोर्ड से टकराता, जब मेहराब ने जल्दी से अपना हाथ डैशबोर्ड पर रखते उसका सर लगने से बचाया था। आई एम सॉरी, लगी तो नहीं आपको? जल्दी से घबराते हुए वो बोला था। धनक ने नफी में सारी लाते उससे दूर होकर बैठी थी। आपके दिमाग में मेरे उस लड़की के बारे में क्या चल रहा है, मुझे बता दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मेरा आबशार ने उसे देखते संजीदगी से कहा था, हमारे पास इतना फजूल का टाइम नहीं है जो ये सब सोचें। रुख मोड़े वो खफकी से बोली तो मेरा आबशार ने उसके अंदाज पर अपनी अमर ढाई मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका था। इधर मेरी तरफ देखें और कहें कि आप कुछ नहीं सोच रही थी। कंधे पर हाथ रखते उसका रुख जबरदस्ती अपनी जानिब मोड़ते वो बोला था, धनक बुखलाई थी, वो प्यारी है। अपनी बुखलाहट को बस पुश्त अपनी बुखलाहट को पसे पुश्त डालते हुए उसकी आंखों में अपनी ब्राउन रंग आंखें डालती संजीदगी से बोली थी। मेहराब की मुस्कुराहट सिमटी थी। भव्य सुकेड़ते उसकी जानिब देखा था और आईब्रो उचकाया था। मेरी बीवी से कम। शायद तो उसके दिलो दिमाग को पढ़ना सीख गया था जो उसने ये जवाब दिया था। धनक के चेहरे का रंग हल्का सा बदला था, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। वो तुमसे छोटी भी है। पता नहीं वो क्या जाहिर करवाना चाह रही थी, लेकिन अपने अल्फाजों से वो मेहराब शाह के गुस्से को हवा देगी थी कि माथे पर अनगिनत शक्लें नमूदार हुई थी। लब भींगते उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते उसकी इंतहाई फजूल किस्म के अल्फाज सुनते खुद पर जब्त किया था। कहना क्या चाह रही हैं आप, ज़रा खुलकर बताएंगी? और ध्यान रखिएगा धनक, आपके अल्फाज कुछ ऐसे ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मुट्ठी भींगते उसने संजीदगी से कहते उसे पहले ही वार्न किया था कि धनक उसके अंदाज पर अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरती बोली थी, हमने उनकी नज़रों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी थी। मेहराब शाह की सुर्ख अंगारा होती आंखों को देखती वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। धनक को उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ था कि वह डरती हुई गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी थी। पूरी बात करो धनक, बादशाह उसको बाजू से थामते सुर्ख अंगारा निगाहें उसकी आंखों में डाले वो सर दो स्पॉट अंदाज में बोलते धनक के वजूद में सनसनी दौड़ा गया था, जबकि उसे के मुंह से पहली बार अपने लिए धनक बादशाह सुनती। धनक की आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी। उसने बेसाख्ता नफी में सर हिला था। आपको मुझ पर यकीन नहीं? इतनी देर मेरे साथ रहने के बावजूद आपको मुझ पर नहीं यकीन, मेरी मोहब्बत पर नहीं यकीन? तुफ है मुझ जैसे इंसान पर जो अभी तक आपको अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाया, जो अभी तक आपको ये नहीं यकीन दिला पाया कि वो कितना आपको चाहता है, कितनी आपसे मोहब्बत करता है। धनक को अपने बाजू में उसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हो रही थी कि चेहरे का रंग लट्ठे की माने सफेद पड़ा था। मेहराब शाह की आंखों में वाज़ेह तकलीफ उभरती देखी थी उसने कि वह मुश्किल ही अपनी सिद्दकी को दबा पाई थी। वो मेरी यूनिवर्सिटी में मौजूद हर दूसरी लड़की मेहराब शाह को पाने की ख्वाहिश करती थी। हर दूसरी लड़की को मेहराब शाह पर क्रश होता, लेकिन मेहराब शाह ने आज तक किसी को यह रसाई हासिल नहीं होने दी।
کہ کوئی محراب شاہ کے قریب بھی بھٹکے، اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنی شریک حیات کے لیے رکھا، اپنی محبت کے لیے رکھا۔ اور آج میں آپ کے منہ سے کیا سن رہا ہوں کہ دوسری لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں آپ کو چھوڑ دوں کیونکہ آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی۔ آپ مجھ سے کچھ 1-2 سال بڑی ہیں، یہی کہنے والی تھی نا آپ؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہوا گال پر بہا تھا۔ محراب شاہ کا یہ شدید ریاکشن اس کے لیے مشکل تھا، اوپر سے اس کا صحیح انداز لگانا کہ دھنک نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا تھا۔ I'm sorry محراب، سچ میں سوری، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ دل میں شدید تکلیف اٹھی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے محراب شاہ کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تھا جسے اس نے جھٹک دیا تھا، اور دھنک کو آج انداز ہوا تھا کہ فقط ایک ہاتھ جھٹکائے جانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو ہر دوسرے دن اپنی طرف سے بڑھتے ہوئے محراب شاہ کے ہاتھ کو جھٹک دیتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ بتا دیں مجھے، کیا کہنا چاہ رہی تھی آپ مجھ پر یہ ظاہر کر کے کہ ایک دوسری لڑکی جسے میں میری یونی فیلو ہونے کے علاوہ جانتا تک نہیں ہوں، وہ بقول آپ کے مجھ سے محبت کرتی ہے؟ دبے دبے لہجے میں چلاتے ہوئے وہ اس کا بازو بھی چھوڑ گیا تھا۔ دھنک نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی تو کہیں آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ آج اسے تکلیف ہو رہی تھی، محراب صاحب کے اس ریئیکشن سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ہمیں آپ کی محبت پر یقین ہے، پلیز ایسا نہیں کہیں، وہ آج تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ رونے کے باعث سرخ آنکھیں غصے کی غم و غصے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں میں ڈالے وہ بولی تھی۔ بدلے میں محراب شاہ کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ دھنک کا دل کیا وہ خود کو ختم کر ڈالے، وہ کیسے اسے تکلیف دے گئی تھی؟ بنا کچھ کہے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بنا دھنک کی جانب دیکھے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے گاڑی کو چلاتے وہ 10 منٹ کا سفر 5 منٹ میں طے کرتا فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی روک گیا تھا۔ اتریں اور اندر جائیں، لہجہ ہر ہے سانس سے آ رہی تھا۔ دھنک کے دل کو کچھ ہوا، آپ نہیں آئیں گے؟ ہمیں بھوک بھی لگی تھی۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ محراب شاہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا اور دھنک کو سب کچھ ویران ہوتا نظر آ رہا تھا۔ بھوک لگی ہے تو بنا کر کچھ کھا لیجیے گا، مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے گا۔ ہاتھ اس کے آگے سے گزارتے تھے دھنک کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہا تھا۔ دھنک نے آنکھوں میں کئی آنسو لیے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے بنا دیکھے اس کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھنک نے ہچکی بھری تھی اور گاڑی سے باہر اتر گئی تھی کہ محراب جو اسے اس طرح سے روتے ہوئے بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا، دھنک کے اترنے پر فوراً سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے دھنک کو اپنی ساری دنیا خالی ہوتی محسوس ہوئی تھی، وہ اسے ناراض ہو گیا تھا اور دھنک محراب شاہ کی جان پر بن گئی تھی۔ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو نہیں؟ پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے پھر ساری رات نیند نہیں آتی۔ شاور لے کر ابھی واش روم سے باہر نکلا تھا جو ورشا اس کے پاس آتی اپنے ہاتھوں کو مروڑتی منہ بنائے معصومیت سے بولی تھی کہ ارحم جو بلیک ٹراؤزر کے اوپر وائٹ سافٹ شرٹ پہنے اپنے بالوں میں ٹاول رگڑ رہا تھا۔ ورشا کی بات سنتے نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ارحم لگاری کو سب کچھ بھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ریڈ چیری کلر کا کھلا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہم رنگ ہی دوپٹے کو سر پر جمائے وہ سیدھا ارحم لگاری کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ بمشکل ہی وہ اپنی نگاہیں سے ہٹاتے اس کے لفظوں پر غور کیا تھا۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ آنٹی گھر ہی ہوتی ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ ٹاول کو دوسرے وہیں سے صوفے پر اچھالتے اسے دیکھتے بنا ہی بولتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ آنٹی یہاں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے روم میں ہوتی ہیں، اور ڈر مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ نہیں ہوتے۔ منہ پھلائے وہ ارحم کو خفگی سے دیکھتے ہوئے بولتی چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارحم نے مرر سے ہی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو معصوم سی انتہائی پیاری تھی اور دن بدن ارحم لگاری کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آگے تو ساری عمر میں تمہارے ساتھ رہا ہوں جیسے تنزیہ کہتے وہ اپنے بالوں پر برش کرنے لگا تھا۔ ورشن نے اس کی پشت کو گھورا۔ ساری عمر ساتھ نہیں تھی لیکن اب تو میں آپ کی ذمہ داری ہوں نا، اور اچھے شوہر اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھاتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں۔ آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورتے وہ ارحم لگاری کو اپنی طرف گہری نظروں سے دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی کہ اس کی بات سنتے ہوتے برش ڈریسنگ مرر پر رکھتے مڑتے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھا تھا کہ ورشا اس کی نگاہوں سے جھینپ سی گئی تھی۔ اور یہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے یہ بھی تمہیں یقیناً آنٹی نے بتایا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہنے پر ورشا نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ آنٹی کا بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا جو تمہیں مزید اچھی بیوی بنانے پر لگی ہوئی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا کہ ورشا چاہتے ہوئے بھی سن نہیں پائی تھی۔ میں تو اچھا شوہر بن جاؤں گا، تم کہو گی تو سارا دن تمہارے ساتھ گزار دیا کروں گا، لیکن تم جانتی ہو نا تمہیں اچھی بیوی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ گمبھیر آواز میں معنی خیزی سے بولتے وہ ورشا کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا انداز وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ چہرے کا رنگ فوراً سے بدلا تھا جیسے ارحم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔
देखें, जी दिखाएँ, क्या दिखाना है? उँगली को उठाकर उसने घूरने की नाकाम कोशिश करते अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती जब आरहम अपने दोनों हाथ सीने पर बाँधे उसकी आँखों में देखते हुए बोला। वर्षा का दिल हथेली पर धड़का था। मेरा मतलब है सुने। जी जी सुनाए, मैं सुन रहा हूँ। चेहरे पर हर दर्जा संजीदगी थी जिसे देखते वर्षा को समझ नहीं आया वो रोए या कहीं छुपे। अरहम मध्यम आवाज में बेबसी से उसे पुकारा था। उसने मुकाबिल के मुंह से पहली दफा अपना नाम सुना था कि दिल ने शदीद ख्वाहिश की थी कि उसका नाम लेती रहे और अरहम बिना पलक झपके उसके होठों से अदा हुआ अपना नाम सुनता रहा। सुनता रहे। दिल शिद्दत से धड़का था। ठीक है, अब मैं एक अच्छा शोर होने का हक अदा करते आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आपको भी वादा करना होगा कि आप भी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, चाहे हालात जो भी हों। अपने दिल का खौफ बाहर निकालते हुए संजीदगी से उसे देखते अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला था कि वरिशा चंद लम्हे तक उसे देखती रही थी और अरहम लगारी को मालूम हुआ कि जो चंद लम्हे उसके लिए क़यामत से कम नहीं थे। बिना सांस लिए वो अपना हाथ उसके सामने रखे उसे देखता रहा था जब वरिशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था और अरहम ने गहरी पुरसकून भरी सांस खारिज की थी। आपने खुद ही कहा था कि मेरा दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, तो मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो बोली थी कि अरहम जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था जबड़े फिर से भींचे तो गुस्से से वरिशा की जानिब देखते हुए उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। तो अगर तुम्हारा कोई और होता है दुनिया में तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। लहजा पहले जैसा नहीं था। वरिशा ने चौंकते हुए देखा था जो आंखों में अजीब सी तासुर लिए सर्दोसपाट अंदाज में बोलता वरिशा की जान हवा कर गया था। नहीं। वे साख्ता उसने नफी में सारे लाते अरहम की जानिब देखा था जो उसके फकत एक लफ्ज पर फिर से पुरसुकून हो गया था। तो कहो कि मैं वादा करती हूँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अपने लफ्जों पर जोर देते उसके सियाह गहरी आंखों में देखते हुए बोला था। नाजुक सा हाथ अब भी मजबूत गिरफ्त में था। मैं वादा करती हूँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। उसकी आंखों में देखने वाले जुनून को देखती वो घबराए से लहजे में बोली थी और वरिशा ने पहली दफा अरहम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ती देखी थी कि आंखें फटी की फटी रह गई थी। थैंक यू सो मच। अब से मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ताकि अगर आपको डर भी लगे तो छुपने के लिए मेरा मजबूत हिसार हो आपके पास। उसके हाथ को पकड़कर लबों से लगाते हुए कितनी ही देर तक अपने लब उसके हाथ की पुश्त पर रखे खड़ा रहा था। चले आ जाएं, सोते हैं। उसे अपने हिसार में लिए वो बेड की जानिब बढ़ा था और वरिशा ने आज उसके जैसे दूसरे रूप को देखा था। ये मैं आपके लिए लेकर आया था मिसेस शाह। कॉफ़ी का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो बोला था कि फराल जो दुलाज की को दवाइयों के जेर असर सोते देखकर खुद वहीं बैठे अपना फ़ोन निकाल कर देख रही थी जब हरीश शाह हाथ में दो कॉफ़ी के कप पकड़े वहां दाखिल हुआ था। फराल ने इसे देखते फ़ोन साइड पर रखते हल्का सा मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पकड़ी थी। थैंक यू मिस्टर शाह, उसी के अंदाज में बोलती वो अरेश शाह को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। खुद एक सिप लेते अब वो अरेश शाह को देख रही थी जो अपनी कॉफ़ी से एक सिप ले रहा था। ये पकड़े आप और ये मुझे पकड़ाए। अपनी कॉफी का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो बोली थी। अरेश शाह ने हैरान होते उसकी जानिब देखा था। क्यों, इसको क्या हुआ? अपनी कॉफी का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए नसमड़ी से बोला और फराल ने से घूरा था। बड़े ही कोई अनरोमांटिक हैं आप मिस्टर शाह, मुंह के जाविये बिगाड़े अफसोस से बोली थी। अरेश शाह ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। एक दूसरे का झूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है, बस वही बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी कॉफी के कप को होंठों से लगाए वो बोलती अरेश शाह को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गई थी और फिर कुछ ही देर बाद अरेश शाह की होंठों पर मायने खेत मुस्कुराहट दौड़ी थी। मेरी जान, पहला प्यार तो आपने अभी देखा ही नहीं और बढ़ाने की तकदों में लग गई हैं। उसका और अपना कॉफी का कप वहां मौजूद सेंटर टेबल पर रखते हुए उस कमरे से पकड़कर अपने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराते हुए बोला था कि फराल की आंखें फैली थी। चेहरे का रंग बदला था। अपने दोनों हाथ उसने मुकाबिल के सीने पर रखते उठना चाहा था। बस इतनी ही हिम्मत थी। उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे अड़साए वो मायने खेदी से बोला था। अरेश, क्या कर रहे हैं आप? उसे अपने ऊपर झुकते देख वो बुरखलाते हुए कपकपाते लहजे में बोली थी। प्यार बढ़ाने की कोशिश, यक लफ्जी जवाब देते अभी वो उसके लबों पर झुकता जब दुलाज की आवाज़ इन दोनों के कानों पर पड़ी थी कि वो दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से पीछे हटे थे। दीदा पानी। वहीं के जेर असर ही वो बंद आंखों के साथ बोली थी। फराल सुर्ख चेहरा लिए बिना आरेश की जानब देखते हड़बड़ाते हुए वहां से उठती दुलाज फातिमा के जाने पड़ी थी जबकि आरेश पीछे अपने बालों पर हाथ फेरता रह गया था। हल्का सा दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर वह गहरी नींद सोती हुई मिली थी कि उसे देखते राफे के माथे पर अनगिनत शक्लें नमूदार हुई थी। आंखों में गुस्से की सुर्खी दर आई थी। आहिस्ता से दरवाजा बंद करते हुए उसकी जाने बढ़ा था।
गहरी पुरतपिश निगाहें के वजूद पर मरकूज किए वो दुलाज फातिमा के दाईं साइड पर पड़ी हुई चेयर पर आकर बैठा था। दुलाज फातिमा का जवाब याद आया तो पूरे बदन में आग के शरारे फूटे थे। माथे और गर्दन की रगें तनकर वाजे हुई थी। लब भींचते उसने अपनी सुलगती हुई निगाहें दुलाज फातिमा के मासूम लेकिन जर्द पड़ते हुए चेहरे पर ही मरकूज किए हुए था। कि दुलाज फातिमा जो गहरी नींद सो रही थी, अपने वजूद पर किसी की गहरी निगाहों को की तपिश को महसूस करते हुए उसने पट से अपनी आंखें खोली थी और हिदल ग्रीन आंखें अपने सामने बैठे हुए रफ़े बलाशाह की सुरमई आंखों से टकराई थी और अपने सामने रफ़े बलाशाह को देखती उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरे बदन में सनसनी दौड़ी थी। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था कि वो हड़बड़ाते हुए वो अपनी जगह से उठी थी। कैसी हो मोहतरमा? ठंडा ठार लहजा था। दुलाज को उसके लहजे से खौफ महसूस हुआ। अपने खुश्क बढ़ते लबों पर जबान फेरते वो जोरों शोर के साथ हाँ में सर हिला गई थी। तो मतलब इतना तो ठीक ही हो कि अभी मेरे साथ चलकर मौलवी साहब के पूछने पर 3 दफ़ा कबूल है बोल सकोगी? तर्ज निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज किए वो अपने लफ्ज़ों से दुलाज फातिमा की जान लबों पर ले आया था। ये ना समझी के तासुरात चेहरे पर सजाया उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए राफे बलाशाह की जानिब देखा था। बहुत शौक हो रहा है मोहतरमा को शादी करने का, तो क्या ख्याल है अभी वो शौक पूरा ना कर दूं? स्पाट अंदाज में बोलते हुए दुलाज फातिमा को कप कप आने पर मजबूर कर गया। उसने खौफ से राफे की जानिब देखा था। क्या मतलब है आपका? गलत तर्क करती वो मुश्किल ही बोली थी। राफे बलाशाह जो कब से जब्त किए बैठा था, एक झटके से अपनी जगह से खड़ा होता हुआ दुलाज फातिमा को दोनों कंधों से पकड़ता हुआ उसे पीछे बेड क्राउन के साथ टेक लगवाता उसके नज़दीक हुआ था कि दुलाज फातिमा ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। आंखों में हद दर्जा खौफ लिए उसने राफे की जानिब देखा था, जो अपनी आंखों से आज उसे फना करने का इरादा रखता था। हिम्मत कैसे हुई लाला को हाँ करने की, उनकी बात मानने की? तुम्हारी? अपने दोनों हाथों से उसके कंधों पर दबाव डालते हुए दबे दबे लहजे में घुराते हुए बोला था कि दुलाज फातिमा ने सहमते हुए अपनी आंखें सख्ती से बंद की थी। आंखें खोलो और जवाब दो मुझे। कैसे हिम्मत की राफे बलाशाह के अलावा किसी के बारे में सोचने की भी, राफे बलाशाह के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की? जब्त करने के बावजूद आवाज़ ऊंची हो गई थी। दुलाज फातिमा उसके अल्फाजों से सख्ते की हालत में आई थी। मुकाबिल के कहने पर अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलते उसकी जानिब देखा था, लेकिन मुकाबिल की आंखों में छाई हुई तुर्की को देखते हुए अपनी आंखें और सख्ती से बंद कर गई थी। रफ़े बलाशाह ने लब भींचे थे। नहीं, नफ़ी में सारे लाते वो बुड़बुड़ाते बोली थी। इससे पहले मैं अपना ज़ब्त खो बैठूं, आंखें खोलो और मुझे जवाब दो। रफ़े बलाशाह का बस नहीं चल रहा था। वो सामने मौजूद वजूद को कुछ कर डाले, और अगर वो उसके दिल में न बसती होती तो राफे शाह को यकीन था कि उसकी गर्दन राफे शाह के हाथ में होती। मैं अदा को इनकार क्यों करती? तो उसके कहने पर वो अपनी आंखें खोलती, इनमें मोटे मोटे आंसू लिए राफे शाह की सुरमई आंखों में देखती हुई भराई आवाज में बोलती, राफे बलाशाह के तन बदन में आग लगा गई थी। तुम इनकार करोगी क्योंकि तुम राफे बलाशाह के दिल में बसती हो, और अगर तुमने इनकार नहीं किया तो आई स्वेयर मोहतरमा मुझ में इतना दम है कि सबके सामने तुम्हें ले जाकर ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लूंगा। और यकीन मानो ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं ऐसा कर गुजरूंगा अगर तुमने लाला का इनकार ना किया तो। अपने लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ आंखों में हद दर्जा सुर्खी लिए वो इसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत कर गया था कि दुलात फातिमा जो आंखें फैलाए उसकी जुनून भरी गुफ्तगू सुन रही थी, लबों से सिसकी बेसाख्ता निकली थी। छोड़े, मुझे पेन हो रही है। आंखों में आंसू लिए उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली थी। राफे बलाशाह ने स्पाट निगाहों से उसकी जानिब देखा था। और मेरी पेन का क्या जो तुम्हारे अल्फाजों से मेरे दिल पर गुजरी है, उसका क्या? दबे दबे लहजे में बोलता वो झटके से उसे छोड़ते हुए पीछे हटा था। दुलाज ने दबदबाई आंखों से उसकी जानिब देखा था, जो आज अपने हर अंदाज और अल्फाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैं हाँ कर चुकी हूँ, आप अदा को इनकार नहीं कर सकती। डरने के बावजूद वो अपनी बात कह गई थी, और उसकी बात सुनते राफे बलाशाह के चेहरे पर गैज़ो गज़ब का इश्तिहाल दौड़ा था। हाथों की मुट्ठियां भींचते उसने कुछ गलत कहने को रोका था। तुम पहले ही लाला को हाँ करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो, जिसका अजाला अभी तुम्हें भुगतना है, और अब इनकार न करके तुम अपनी गलती की सजा मत बढ़ाओ कि बाद में इस नाजुक जान को सजा सहना मुश्किल हो जाए। अपने लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला था कि दुलाट फातिमा ने लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसकी जानिब देखा था। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, तुम लाला का इनकार करोगी, और अगर ना किया तो उसके के अगले दिन तुम राफे बलाशाह के नाम के साथ मंसूब हो जाओगी। मर्जी तुम्हारी है। तर्ज स्पाट अंदाज में कहता हुआ लंबे लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया। पीछे दुल्हन की आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहे थे। मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अभी दरवाज़ा खोलते मेहराब के साथ वाली सीट पर बैठता जब सामने से धनक को आते हुए देखते हुए बोला था। धनक जो उनके करीब ही आ गई थी। राफे की बात उसने भी सुनी थी और अंदर बैठे मेहराब साहब को देखा था, जिसके चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी तारी थी। नहीं, कोई बात नहीं, तुम आके बैठ जाओ। धनक जैसे यकीन था कि मेहराब उसे ही आके बैठने को कहेगा, लेकिन मेहराब की बात सुनते दिल छनाक से टूटा था।
आंखों में तेजी से नमी तैरी थी और डबडबाई आंखों से मेहराब साहब को देखा था, जो अपनी सारी वजह सामने मरकूज किए हुए था। जब से उसे छोड़कर गया था, धनक अब उसे देख रही थी, वो भी इसीलिए कि वो सब हवेली वापस जा रहे थे शामिर शाह के साथ। हरेश फराज दुलाज बैठे थे, जबकि मेहराब के साथ धनक और राफे थे। बहती आंखों के साथ वो सारी रात उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन उसे नहीं आना था और वो नहीं आया था। दिल में अजीब उदासी बेचैनी दर आई थी। भारी होते कदमों के साथ उसने खुद ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला था और अंदर बैठ गई थी। तो राफे भी उसे देखता पैसेंजर सीट पर बैठा था और मेहराब शाह ने बिना उसकी जानिब देखते संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट करते अपना रास्ते पर गामजन की थी। धनक दबदबाई आंखों से सारे रास्ते बैक व्यू मिरर से उसकी नजर आती आंखों को देखती आई थी, लेकिन इस सितमगर ने एक बार भी पलकें उठाए उसकी जानिब नहीं देखा था। वो नाराज था और धनु को अपना सब कुछ वीरान सा होता महसूस हो रहा था। सब कुछ खाली खाली लग रहा था। आंख से एक आंसू निकला था, जिस पर उसने फौरन से आती उंगली से अपनी आंख साफ करते सर झुकाया था और मेहराब शाह ने बैक व्यू मिरर से उसके झुके सर को देखा था। अनाया, अब चुप कर जाओ, वरना मामा ने अब एक लगा देनी है। हाथ का थप्पड़ बनाकर अनाया के सामने करते हुए आंखें दिखाते हुए उसे बोली थी कि अनाया एक लम्हे के लिए सहम गई थी। अगर ही लम्हे उसका स्पीकर पहले से भी ज्यादा बुलंद हुआ था। महरोश उसके गला फाड़ कर रोने पर बुखला गई थी। अरे अरे अनाया, मेरी जान, मम्मा मजाक कर रही थी। मम्मा भला मार सकती है अपनी जान को? चुप मेरी जान, बस अब और नहीं रोना। कल से रोई जा रही हो, इस तरह से तो मेरी जान की तबीयत खराब हो जाएगी ना। एकदम से उसे अपने कंधे के साथ लगाते हुए रूम में चक्कर काटते हुए बोली थी शामिर शाह। पर उसे हद दर्जा गुस्सा भी आ रहा था, जिसने अनाया को अभी से अपनी इतनी गंदी आदत डाल दी थी कि बड़ी होकर तो उसने पता नहीं क्या करना था। आपके पापा जब आएंगे, मैं उसे कहूंगी कि आपसे अनाया को भी अपने साथ लेकर जाया करो, ठीक है ना मेरी जान? अब रोना नहीं है। उसका सर अपने कंधे से हटाकर सामने करते हुए उसके माथे पर लब रखते हुए बोली थी। अनाया ने छोटी सी हिचकी बढ़ी थी भरी थी। महरोश को बेसाख्ता उस पर तरस और उस पर गुस्सा आया था। मदम सी आवाज में वो मासूमिया के साथ होंठ बाहर निकाले फिर से बोली। तो महरोश का बस नहीं चला था कि शामिर शाह जहाँ यहाँ होता तो उसे दो चार सुना देती। मामा की जान, बाबा काम से गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, फिर आप उसके साथ खेलना, ओके ना? उसे बचकाने की नाम से बचकाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए वो बोली थी, लेकिन अनाया ने एक दफा फिर से रट पकड़ ली थी, जबकि महरोज का अपना सर पकड़ना बाकी रह गया था। वो एकदम से चौंकी थी। जहन में कुछ ख्याल आया था कि चेहरा कुछ पुरसकून सा हुआ था। अच्छा, एक काम करते हैं, हम गेम खेलते हैं, ठीक है ना? आप इधर बैठो, मैं भी अभी आई। अनाया को नीचे कालीन पर उसके टॉयज के साथ बैठाते हुए जल्दी से खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी थी, जब अनाया भी अपनी मामा की बढ़ती देख कर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो अनाया अपनी आंखों का इंतहाई बड़ा बड़ा करके महरोश को देखने लगी थी, जो शामिर शाह की ब्लैक रंग की शलवार कमीज पहने अपने बालों को जूड़े में मुकीद किए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी। प्रिंसेस, बाबा की जान, क्या हुआ बाबा की जान को? ऐसे क्यों रो रही है मेरी प्रिंसेस? अपनी आवाज़ को शामिर शाह की आवाज़ की तरह हर दर्जा भारी रखे वो मुकम्मल शामिर शाह की नकल उतारते हुए बोलती अनाया की जानिब बढ़ी थी, जबकि अनाया हैरानगी से यकटक अपनी मामा को देख रही थी, जो शामिर शाह के सूट में इंतहाई प्यारी लग रही थी। बाजू उसके हाथों तक आते उसके हाथों को छुपा रहे थे। बाबा की प्रिंसेस को किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। उसे अपनी बाहों में बढ़ते वो हनूज अपने लहजे को भारी बनाने की कोशिश करते बोलती दरवाजे के हैंडल पर रखे शामिर शाह के हाथ को थमा गई थी। हैरानगी से हल्का सा दरवाजा खोलते उसने अंदर देखा तो आगे शामिर शाह साकित रह गया था। हैरानगी से आंखें फैलाए उसने अंदर मौजूद अपनी बीवी को अपने लिबास में देखते होंठों को दांतों तले दबाकर रह गया था। बाबा की प्रिंसेस उसके माथे पर लब रखती वो बोली थी कि अनाया अपनी मामा की एक्टिंग देखकर खिलखिलाई थी और फिर उसकी खिलखिलाहट पूरे रूम में गूंजी थी। महरोश भी उसे खिलखिलाते देखकर गहरा मुस्कुराई थी। शामिर शाह ने आहिस्ता से दरवाजा खोलते रूम में दाखिल होते दरवाजा बंद करते उसके साथ ही टेक लगाए खड़ा होकर गहरी नजरों से अपनी बीवी को देखने लगा था। आपके बाबा के ड्रेस में मैं प्यारी लग रही हूँ ना? गहरी मुस्कान लबों पर सजाए वो मुस्कुराते हुए बोली थी और अनाया ने अपने हाथों से महरोश के चेहरे को छूती खिलखिलाई थी। बेहद के शामिर शाह अपनी जान से जा रहा है। गंभीर भारी आवाज उसके कानों से टकराई थी कि महरोश अपनी जगह से उछली थी। फौरन से पीछे मुड़ते देखा तो अपने दोनों बाजू सीने पर बांधे इत्तेहकाक भरी नजरों से देखता कदम उसकी जाने बढ़ा गया था, क्योंकि महरोज फटी फटी आंखों से उसे होंकों की तरह मुंह खुले देख रही थी। बाबा बाबा शामिर शाह को देखते अनाया महरोश के हिसार से निकलने की तगदो करती हुई बेताबी से बोली थी। महरोश अपने ट्रांस से बाहर निकली तो शामिर शाह की जज्बे लुटाती निगाहें खुद पर मरकूज देखते और खुद को उसके सामने उसके ड्रेस में देखते वो जल्दी से अनाया को नीचे छोड़ते वो वॉशरूम की सिमट भागती वहां जा बंद हुई थी।
बाबा बाबा अनाया को घुटनों और हथेलियों के बल दौड़ती हुई बाबा की रट लगाए हुए थी कि शामिर शाह जो महरोज की को बढ़ते देख उसकी जाने बढ़ने लगा था। अनाया को देखते उसके कदम थमे थे, थकान भरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। दो कदमों का फासला एक कदम में समेटते हुए अनाया को अपनी बाहों में उठा गया था। बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस, बाबा की जिंदगी, बाबा मिस यू सो मच बाबा की जान। उसके चेहरे पर जान जा बजा लब रखते हुए उसे खिलखिलाने पर मजबूर करता हुआ बोला था कि अनाया हंसती खिलखिलाती अपने छोटे छोटे हाथों से शामिर शाह के बालों को पकड़ चुकी थी। बाबा उसकी खिलखिलाहटें पूरे रूम में गूंज रही थी। शामिर शाह उसके गालों पर रेड निशान छोड़ता पीछे हटा था और उसकी आंखें चूमते माथे पर लब रखे थे। बाबा की जिंदगी अपने कंधे से लगाते हुए आंखें मूंदते सुकून महसूस कर गया था। अनाया ने हनूज अपने छोटे छोटे हाथों में उसके बाल पकड़ रखे थे। बाबा बाबा मामा से मिलने आप इधर अपने टॉय के साथ खेलें, ओके बाबा की जान। उसे नीचे कालीन पर बैठाते वो प्यार से बोलता पहले ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा था। वहां से वॉशरूम की कीज उठाता वो वॉशरूम की सीमत बढ़ते आहिस्ता से वॉशरूम का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। मैं क्यों आई हूँ यहाँ, मैं तो नाराज हूँ उनसे। वो जो अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखे मिरर के सामने खड़ी, जब उसे याद आया था कि फौरन से सोचते वो मुंह बनाते अभी अपने जोड़े में मुकीद बालों को खोलती जब वॉशरूम का दरवाजा खुला था और शमीर शाह अंदर दाखिल हुआ था कि महरोश मिरर में नजर आते उसके आंख को देखती हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी थी। आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था। सुर पड़ते चेहरे के साथ उसकी जाने देखने की नाकाम कोशिश करते बोली थी, लेकिन शामिर शाह की गहरी पुरतपिश निगाहों में देखना महाल काम था। आपको लगता है कि दरवाज़ा मुझे यहाँ आपके पास आने से रोक सकता है? आईब्रोज खाते हुए लब दांतों तले दबाए बोलता उसकी जानिब कदम बढ़ा गया कि महरोज फौरन से पीछे हटी। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी मुझे इतना याद कर रही थी कि मेरे पीछे वो मेरे ड्रेस पहनती है। उसके दाएं बाएं हाथ रख के वो गहरी इत्तेकाक भरी नजरों से देखता गंभीर आवाज में बोला था कि महरोज का रंग पहले से ज्यादा सुर्ख पड़ा। मैं नहीं पहनती और ना मैं आपको याद नहीं कर रही थी। वो अनाया रो रही थी इसलिए इसे चुप करवाने के लिए पहना। शामिर शाह के ब्लैक रंग के कुर्ते में छुपे अपने हाथ उसके सीने पर रखती वो वहां से निकलने की तैयारी करते बोली थी, जो भी है रोशी जान, लेकिन आपका ये रूप जानलेवा है। कि शामिर शाह को अपना आप भूलता हुआ महसूस हो रहा है। उसकी शफाफ गर्दन में मुंह छुपाए वो शिद्दत से भरपूर अंदाज में सरगोशी करता महरोज की जान हवा कर गया था। मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए मीर इसलिए पीछे हटे। उसकी गुर्बत में महरोज को अपनी नाराजगी याद आई तो फौरन से घबराते लहजे में मुंह बनाते बोली थी। शामिर ने अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। आपकी नाराजगी ही तो दूर दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ रोशी जान। उसके गालों पर अपनी बियर्ड रगड़ते वो बोझल आवाज में बोलता महरोज के अवसान खता कर गया। दिल तेजी से धड़का था। मैं मीर आप बुरे हैं, मुझे बात नहीं करनी आपसे। उसके अल्फाज याद आए तो आंखों में हल्की सी नमी लाए मुंह फुलाते हुए बोली थी, ना करें मीर की जान, पहले ही आप मुझे बहका चुकी हैं और ऊपर से आपकी याद आए। उसकी दूसरी गाल पर बियर रगड़ते हुए वो बोलता महरोज के बदन में सनसनी दौड़ा गया था। उसने घूरते हुए उसने घूरते हुए मुंह बनाया था और हमेशा मुस्कुराया था। अच्छा बताएं, गलती की माफ़ी कैसे मिल सकती है? उसके माथे पर अकीदत से लब रखता वो बोला था, शाह मुझे आपके साथ रहना है हमेशा के लिए। आप मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे और अनाया को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी मोहब्बत के सामने वो हारती हुई बुराई बात में बोली थी, रोशी जान क्या मैं इसे इजहार मोहब्बत समझूं? उसके अल्फाजों से वो साकित हुआ था। धड़कते दिल के साथ बोलते हुए चमकती आंखों के साथ उसकी जानिब देखने लगा था। मीर आप मेरी बात का जवाब दें पहले। अपने लफ्ज़ों पर जोर देती वो गुस्से से बोली थी, मीर की जान, शामिर शाह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। बाबा इनमें से भी कोई कुछ कहता जब अनाया वॉशरूम के दरवाजे का सहारा लेती खड़ी होने की कोशिश करती मासूमियत से इन दोनों की जानिब देखते शामिर शाह का पुकार गई। शामिर शाह झटके से महरोज से पीछे हटा था। जी बाबा की जान। वो बुखला गया था, गर्दन रब करते हुए अनाया की जानिब बढ़ गया था, जबकि महरोज ने मुस्कुराहट जब्त करके रह गई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।